इसको जाके जब भी मतलब पढ़ रहे हो क्लास के बाद जाके रिपन और प्रगति दो ही लोग हो, अनम्यूट कर सकते हो। जाके जब भी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी क्या समझ में आ रहा है या फिर मुश्किल हो रहा है समझने में कॉन्सेप्ट्स? हाँ सर, समझ में आ रहा है सर। कल जो क्वेश्चन सब था, जब मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा तब देखा कि नहीं, उधर से डायरेक्ट क्वेश्चंस लेके बनाया उधर। तो वही है मतलब क्वेश्चंस वैसे ही आएंगे, एग्जाम के क्वेश्चंस ही थे वो। ठीक है, वो मतलब बहुत ही मतलब तुम एक बार अगर वो कॉन्सेप्ट समझ लो और फिर उसके बाद उसको अप्लाई करो ना क्वेश्चंस में, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली हो जाएगा। और एक वो बात भी है कि एक बार अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में रह गया ना, आपको और पढ़ना नहीं पड़ेगा बार बार बुक, आप सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने चलोगे, कॉन्सेप्ट यूज करोगे, हो जाएगा। मतलब इतना पढ़ने का भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे सोचते हैं कि पॉलिटी बहुत पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल्स याद रखना पड़ेगा, कुछ आर्टिकल्स तो याद ही नहीं रखने, बस वही है। क्या यार, कहाँ गए और बाकी लोग? तो बच गया, बोला था 4:05 से स्टार्ट करेंगे। So good morning, everyone. This is our fifth lecture of the Indian Polity crash course that we are having for GSI Prelims GS course. Uh, Today we will be talking about citizenship chapter. Yesterday we talked about territory. Today we will understand how the citizenship works in our country. So we will this will be the brief outline of our discussion today. Today we will understand the various conceptual areas that are related to citizenship, like its dimensions, the kind of citizenship that India offers to its citizens, those things. And then we will also understand some types of laws that are involved in the citizenship, the ministries involved in the citizenship, providing the citizenship. And along with that, we will also look at the citizenship policy of our country, and how someone becomes a citizen of our or citizen of India, and how the citizenship is terminated. We'll look at both of these things, and also we will be briefly talking about the recent amendment that happened to the Citizenship Act. That is the Citizenship Amendment Act of 2019. This we will discuss it in to the details that is necessary for your prelims, not more than that. And lastly, like in every class, I'll tell you which sources to refer and what to refer. Okay, so with that, let's start with the dimensions of citizenship. Okay, like we have talked in our last class, in last lecture in territory. uh, the territory, citizenship also has various dimensions too. Okay, so when we are talking about the people living in a territory of India, like when we talk about the citizenship, it's nothing but the people that are living in the territory of India. So that means the concept of citizenship starts where the concept of territory ends, right? जहां से हमने मतलब हम अगर सिटीजन को डिफाइन करना चाहते हैं तो पहले तो उसका टेरिटरी डिफाइन करना पड़ेगा ना। एक कॉन्फाइंड टेरिटरी के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो हम उन्हीं को ही बोल सकते हैं कि ये इस जगह का सिटीजन है। तो फिर तो ये इसमें कौन फर्स्ट आता है? फिर हम टेरिटरी फर्स्ट आता है, टेरिटरी पहले आएगा। एक जगह जब तक डिफाइन नहीं करोगे तब तक आप उसके कौन से लोग उसमें रहते हैं उनको कैसे डिफाइन करोगे? जगह का नाम होगा तभी तो सिटीजन ऑफ दैट बोलोगे। मतलब कल जैसे हमने देखा, India, that is Bharat, is a union of state. It was written in Article 1. So India, that is Bharat, is the area, that is the territory that we define for ourselves. Now, now if we say that these people are citizens of India, that means the territory that is defined in the Constitution, which is also called Bharat, they are the people of they are the citizens of that territory. So easily when you see the territory in the Constitution of India, that part 1 talks about territory first, and just next to it part 2 which talks about the citizenship. तो समझ में आ गया कि क्यों मतलब ऐसे हैप्पैज़र्डली हमने किसी पार्ट को ऐसे रख नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में। देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू डिफाइंड द टेरिटरी फॉर योरसेल्फ in part 1, then in part 2 you come to the people living in that territory and you are talking about the citizenship, right? ये समझ में आ गया ये लॉजिक कि क्यों हम पहले इस पार्ट में मतलब पार्ट 2 में हम सिटीजनशिप हम उसको पहले क्यों डिफाइन नहीं कर दिए? पहले एक जगह डिफाइन किया हमने हमारे लिए, देन इन द सेकंड पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द सिटीजनशिप like the people living in that territory. That's clear. Now
let us say we are talking about the people living in the physical territory of India. कल हमने बात किया था 3-4 टाइप के टेरिटरी के बारे में, फिजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्निकल, ये सब बारे में बात किया था. तो लेट अस से वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड द पीपल रिसाइडिंग इन. सो based on the physical territory we can divide the people into two parts, those who are the citizens and those who are the non citizens. Okay. पहले हमने क्या बोला कि हम अभी डिफाइन करेंगे टू बाय टेकिंग द फिजिकल टेरिटरी पार्ट ऑफ द इंडिया, दैट इज द लैंड में जो लोग रह रहे हैं, मतलब जो टेरिटरी के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको डिफाइन अगर करना चाहते हैं, which are then we can divide them into two parts, the citizens and the non citizens. जो हमारे citizens हैं और जो हमारे citizens नहीं है, सिंपल. तो नॉन सिटीजन्स को एक्चुअली आप फॉरेनर्स भी बोल सकते हो, एलियंस भी बोल सकते हो. एलियन क्या है इन द लॉ प्रोसेस? आई विल टेल यू दैट. aliens under law are referred to people who are not the citizen of our country. कोई extraterrestrial body नहीं है alien in law, in constitution. It is just that whoever is not the citizen of your country, he is a foreigner or he is an alien. Okay. तो alien का मतलब है कि वो citizen नहीं है आपका. So the fundamental difference that exists between these citizens and the non-citizens is that citizens are given the right to vote. They also have the right to contest elections, and they also have the right to hold public office. Now, what is a public office? Public office is anything that is related to the service of the people, any office that is related to the service of people and owned and operated by the government body. ये इलेक्टेड भी हो सकता है, ये अपॉइंटेड ऑफिस भी हो सकता है. इलेक्टेड ऑफिस होगा तो जैसे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हो गया, प्रेसिडेंट्स ऑफिस हो गया. Those are the elected public offices. And the bureaucrats and the civil servants, like आप लोग भी जब जियोलॉजिस्ट बन जाओगे, एवरीवन, ये सब मतलब क्या होगा, ये अपॉइंटेड पब्लिक ऑफिस होगा. आप लोग for the service of the nation, for the service of the people you will be serving. तो ये citizens को ये rights मिले that they can right to vote, they have the right to vote, they can contest elections and they can hold the public offices. इसीलिए आप जब भी देखना, जब नोटिफिकेशन आता है किसी भी एग्जाम का, GSI का हो गया, जिसमें हुआ सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या लिखा होता है? that he should be the citizen of India लिखा होता है ना. तो वही है कि मतलब सिटीजन्स के लिए ही वो है, नॉन सिटीजन्स कैन नॉट हैव these three rights. ये बेसिक डिफरेंस है सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स में. सिटीजन्स को ये वाले पार्ट्स एक्सक्लूसिवली दिया गया है, नॉन सिटीजन्स के पास ये अवेलेबल नहीं है. दैट्स क्लियर. एंड देन और ये एक चीज हो गया जो सिटीजन्स के पास है. देन द सेकंड थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर इज दैट वंस यू हैव बिकम अ इंडियन सिटीजन, once you are becoming an Indian citizen, no matter how you have become an Indian citizen, we will talk about how you can become an Indian citizen in different ways, 4 different ways, the 5 different ways. But no matter how you become an Indian citizen, all the rights will be always be equally available to all the citizens. Whatever the rights are, they will always be equal to all the citizens. मतलब जो भी right मुझे मिल रहा है, मैं हो सकता है मैं बाय बर्थ एक सिटीजन हूँ, मैं हो सकता है मैं बहुत साल रहने के बाद बाय अ प्रोसेस मैंने रजिस्ट्रेशन करके या फिर मैं एप्लीकेशन करके इंडियन सिटीजन बन रहा हूँ. बट नो मैटर हाउ आई बिकम द सिटीजन ऑफ द इंडिया, I am entitled to have all the rights that are ensured for the citizens. But this is not the case in other countries. For example, in US, somebody who is a citizen by birth, who have the privileges that somebody has as a citizen by birth are not the same for someone who is a citizen by registration or by naturalization. तो क्या है कि अगर आप कॉन्टेस्ट करना चाहते हो यूएस में फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, देन यू हैव टू बी अ सिटीजन बाय बर्थ. मतलब आप वहाँ पे आपका वहाँ पे बर्थ होना चाहिए, बाय बर्थ यू आर अ सिटीजन देयर. आप वहाँ पे यूएस के सिटीजन हो बाय बर्थ, only then you can contest for the election of the president. But in India, if you no matter how you become a citizen, हमने बोला that means कि आप by birth हो सकते हो, by registration होते हो, by naturalization होता है, same है. आप उसके बाद भी आप presidents के election office के लिए आप election लड़ सकते हो. That मतलब ये एक basic difference है जो इंडिया में हम apply करते हैं, that is universal
एप्लीकेट मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑल द राइट्स टू द सिटीजन्स। सिटीजन्स को हर चीज सेम मिलेगा, किसी को अलग अलग ट्रीट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, ये दो चीजें हम सिटीजन्स के बारे में जाने। Then when we talk about the citizens, of course we can divide them into two parts based on the geographical dimension, geographical implications। geographical implication क्या है कि आप कितने दिन, आप how much time you are spending on that territory, what amount of time you are spending, or what amount of time you are residing in a specific territory or a specific country, you can say। तो resident कौन है? Resident is someone who is living in a territory or a country more than 180 days in a financial year। 180 days in a financial year मतलब उससे ज्यादा अगर आप रह रहे हो, then you are a resident of that country। For this example, you can say if you are saying if you are staying more than 180 days in a country in India for a given financial year, then you will be treated as a resident of India। But if you are staying less than 180 days in a financial year in India, you will be treated as non-resident Indian, जिनको आप NRI बोलते हो। हाँ, तो ये बस एक नंबर का डिफरेंस है, मतलब 180 डेज अगर उससे ज्यादा हुआ, एक कट ऑफ डेट हमने डिसाइड किया, इससे ज्यादा होगा तो आप रेसिडेंट हो, इससे कम होगा तो आप नॉन रेसिडेंट हो। बट द थिंग टू कीप इन माइंड, नॉन रेसिडेंट इंडियन का मतलब ये नहीं कि वो और सिटीजन नहीं रहा हमारा, he is still a citizen of our country, but the person is no longer staying in our country, he is a citizen of our country, he holds our passport for Republic of India, but at the same time he is not staying in our country, he is working somewhere else, his economic interest is somewhere else, but he is still a part of our country, a citizen of our country। but resident Indian का क्या है कि वो यहाँ रह रहा है 180 डेज से, वो यहीं पे काम कर रहा है, यहीं पे उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं पे है, बट बस उसको एक डेट के हिसाब से हमने डिफाइन किया, एक कट ऑफ डेज के हिसाब से हमने उसको डिफाइन किया। तो सो अगर आप यहाँ पे रह रहे हो और अगर आप यहाँ पे नहीं रह रहे हो, तो कुछ तो डिफरेंस मिलेगा आपको, मतलब कुछ तो चेंजेस होंगे, मतलब हर एक चीजें तो सेम नहीं होंगी। जो हम यहाँ कर रहे हैं, लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे तब भी वो उनको सारे राइट्स अगर मिले तो थोड़ा तो इश्यूज होंगे ना, मतलब आप उस राइट्स को एंजॉय नहीं कर रहे हो, यूज नहीं कर रहे हो, बट आपको मिला हुआ है, दैट विल क्रिएट अ केओस। तो उसके लिए क्या है कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस पर कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाले हैं हमने। The first restriction is that you cannot the first one is not actually a restriction, it's just a logical thing to do, that if you are not staying more than 180 days in a country like in India, you are not using our services, मतलब हम यहाँ पे Indian services जो भी हैं, you are not using them, then why would you pay the income tax here? In India you don't have to pay income tax if you are an NRI, you will pay the income tax in the country of your residence। मतलब आप अगर यूएस में रह रहे हो, बट यहाँ पे बस इंडिया आते हो कभी कभी बीच बीच में, 1-2 साल में एक बार 10 दिन के लिए आते हो, तो यहाँ पे अगर इनकम टैक्स भरोगे, इट विल बी अनएथिकल, बिकॉज you don't use the services in India like the others do। हम लोग इनकम टैक्स भरेंगे क्योंकि वी आर एंजॉइंग गवर्नमेंट सर्विसेज हियर, वी आर एंजॉइंग थिंग्स हियर। आप बस मेहमान बन के आपके घर में आपके घर में आपका जो रोल है, आपका मेहमान आएगा उसको भी सब्जी लाने भेजोगे क्या? नहीं भेजोगे ना। तो वही चीज है कि इनकम टैक्स आप यहाँ पे नहीं भरोगे इफ यू आर नॉन रेसिडेंट इंडियन। बट एट द सेम टाइम हमने इन पे रेस्ट्रिक्शंस क्या लगाया कि सबसे 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 इंपॉर्टेंट थिंग हमारे इंडिया में एक चीज जो है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, मतलब लोगों के लिए एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उनका उनको उनके मतलब जमीन से बहुत प्यार है, हम बोलते हैं ना, मतलब इंडिया इज बेसिकली अ एग्रीकल्चरल कंट्री, agricultural economy, so the agricultural lands are very important for us, we have to preserve them। but if you are giving the right to a non-resident Indian to use to own and sell or transact agricultural property and he is not staying here, definitely he will not be involved in the agricultural business। एग्रीकल्चरल बिजनेस में वो टेक पार्ट ही नहीं करेगा, वो तो यहाँ रह ही नहीं रहा है ना, उसको वो एक एग्रीकल्चरल लैंड को कल्टीवेट करके उसमें फिर मतलब उसको एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज ही नहीं करेगा। if we allow them to own those agricultural lands, he could sell it to someone, he could sell it to a builder, where then construction can happen in an agricultural land। so in that way the agricultural land can be converted in it can lead to the commercialization of that agricultural land, जहाँ पे आप मतलब जमीन में हमें
फार्मिंग कर सकते हैं तो वहां पे वो और किसी पर्पस के लिए भी यूज हो सकता है. सो दैट्स व्हाई एज अ नॉन रेसिडेंट इंडियन यू कैन नॉट ओन ट्रांजैक्ट एनी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी. तो उस पर आपका रेस्ट्रिक्शन है. ठीक है. आप एक एनआरआई हो तो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते. दैट इज द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट इंडियंस. Now let's look at the welfare dimension. Welfare dimension क्या है? Welfare dimension में एक term आता है that is domicile. Domicile is basically you are holding the domicile of a state. हम बोलते हैं ना कि हम एक state के domicile है. हम तो उसका मतलब क्या है? That you are staying in a state for a considerable amount of time, and it is just a proof of your residency, domicile. So why is it linked to the welfare dimensions of the citizenship? Because by holding a domicile you are given certain preferences. अब पकड़ लो आपका जैसे आप उस दिन कोई बोल रहा था कि that Karnataka government is giving 68% reservation to their residents, to their domiciles. बोल रहे थे ना हम. So that means कि you will be given preferences in certain jobs that are published by the state. मतलब स्टेट के जो प्रोग्राम्स है, स्टेट वेलफेयर प्रोग्राम्स है, देयर आर सर्टेन स्कीम्स दैट स्टेट्स आर प्रोवाइडिंग. उन सब चीजों में आपको प्रेफरेंसेस मिलेगा. हायर एजुकेशन में, हायर स्टडीज में आपको जो स्टेट गवर्नमेंट के ओन्ड इंस्टीट्यूशंस है उनमें रिजर्वेशन मिलता है. जैसे कि बंगाल में ये जादवपुर यूनिवर्सिटी में दे हैव I think 80% reservation for the old students. दिल्ली यूनिवर्सिटी में they have the 80% reservation for the domicile students. तो ये सब चीजें मतलब वेलफेयर एस्पेक्ट से आप सोच सकते हो that domicile is a concept that is attached to the welfare of the citizens. And this is something that the concept of domicile that we derive from the article 5 of the constitution. कल हमने 1 2 3 4 पढ़ा था टेरिटरी में, तो ये 5 से स्टार्ट होता है. तो आर्टिकल 5 इज actually talks about this welfare dimensions of citizens which is linked to the domicile, right? Now one thing to keep in mind is that irrespective of you are a resident Indian or a non-resident Indian, either you hold a domicile or not hold the domicile, you all are equally entitled to enjoy all the fundamental rights. ये चीज समझ में आया. आपका फंडामेंटल राइट कोई नहीं ले सकता. फंडामेंटल राइट एज अ सिटीजन यू all of you have the same fundamental right. There is no difference in that. As a citizen, as a resident, मैं जो fundamental rights enjoy करता हूँ from article 13 to 32 जितने भी है सारे सबको अवेलेबल है सबके लिए for citizen, residents, non-residents, whether you are a domicile of the of a state or not. ये सब सबके लिए है. ये सबके लिए सेम है फंडामेंटल राइट्स. क्योंकि देखो डोमिसाइल क्या है ना, इफ यू आर स्टेइंग फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम लाइक फॉर 6 months or something, I don't clearly remember the exact months that you need to stay, but वो है कि आप एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम एक स्टेट में बिता रहे हो तभी जाके आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो. बट आपको पता है लोग सर्विसेज में रहते हैं, जैसे कि आर्मी सर्विसेज हो गया कि सिविल सर्विसेज में हो गए लोग, वो दे डोंट स्टे इन अ पर्टिकुलर स्टेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. दे जस्ट कीप मूविंग इनसाइड इंडिया. तो उनके पास डोमिसाइल नहीं होता. इसका मतलब तो ये नहीं उनको हम फंडामेंटल राइट्स अवेल नहीं करवा सकते. फंडामेंटल राइट्स इज समथिंग दैट इज guaranteed by our constitution to every citizen of this country. So but no matter who you are, as long as you are a citizen, no matter you are a resident, non-resident Indian or a domicile holder or not, you are given certain you are entitled to enjoy all the fundamental rights equally. That is the something that you need to remember in mind. Okay. So now that we understand the people who are the citizens, now we move on to the people who are the non-citizens or the aliens or the foreigners. Aliens, as I said, who is not a citizen of our country, is also called alien. No? So now we can classify them based on if they have a valid legal document or not. Valid legal document means you have either you have a valid passport which is not expired. एक पासपोर्ट है आपके पास, आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हो उस कंट्री का पासपोर्ट आपके पास है. the passport should not be expired, and you have a legal visa to stay in India. एक लीगल वीजा का मतलब क्या होता है कि you have a permission to stay in that country for a stipulated period of time. उसमें लिखा होता है वीजा फॉर 180 days, वीजा फॉर 2 years, वीजा फॉर 5 years, ऐसा रहता है ना.
So you have a permission to visit that country or to stay in that territory. That is what is called a visa. आपका visa सही है, आपका passport सही है, you have a valid document. That is all that you need for a valid documentation. उसको बोला जाता है valid documentation. So on the basis of that, if you have a valid legal document or not, and then if you don't have a valid legal document, इस basis में हम इनको segregate कर सकते हैं. Now we can also then also subdivide the both of them into the valid legal document. The citizens with the non-citizens with valid legal document can be divided into two subdivisions, based on which country they come from. किस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं उसको लेके फिर हम उनको भी जो जिनके पास वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट है उनको भी सब डिवाइड कर सकते हैं. वन इज अ फ्रेंडली एलियन, वन इज एनिमी एलियन. एनिमी एलियन और फ्रेंडली एलियन में डिफरेंस क्या है कि फ्रेंडली एलियन इज समथिंग समवन with someone who comes from a country with which India shares a good relationship, a friendly relationship, a friendly country. And then enemy alien, ये तो डिफाइंड नहीं है, बट यू कैन से दैट with whom India do not have a friendly relationship, or we are at a war with some country. तब अगर वहां से कोई आ रहा है तो we can declare that the persons who are coming from this country will be treated as enemy alien in India. तो ये एक बेसिक चीज है जो आपको समझना पड़ेगा कि there is no such definition written in the constitution who is a friendly or who is a enemy, but the thing is कि आपको ये जो है केस बाय केस बेसिस में इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करते हैं कि फ्रॉम दिस डेट अगर हमारा कल को पकड़ लो किसी कंट्री के साथ वॉर होता है तो हम ये नोटिफाई करेंगे फ्रॉम दिस डेट citizens of this particular country will be treated as enemy alien in India. ये हो गया. तो ये है एनिमी और फ्रेंडली एलियन के बीच में डिफरेंशिएशन. एंड देन वी कैन से दैट हाँ अभी फ्रेंडली एलियन और एनिमी एलियन में क्या क्या मतलब डिफरेंसेस, क्या मतलब क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे वो भी समझ लेते हैं थोड़ा. So the first thing that you need to understand that no citizen, the non-citizens are not guaranteed any kind of affirmative action rights. कल के क्लास में मैंने बोला था, कल या परसों के क्लास में मैंने बोला था, प्रीएम्बल में मैंने बोला था कि अफर्मेटिव एक्शन वाला चीज क्या है कि जो रिजर्वेशन दैट यू वांट टू प्रमोट इक्वालिटी अमंग द पीपल. सो दोज पीपल हु हैव बीन जो लोग पिछड़े वर्ग के जो लोग थे हु हैव बीन who are not integrated into the development of the country, you give them certain rights or reservation to make them able to come to the forefront and play in an equal playing in a level playing field. To create a level playing field, you give them certain reservation or rights जो लोग अभी डेवलपमेंट में पीछे उनके लिए. बट अब सोचो ना कि क्यों हम ये राइट्स इनको देंगे जो नॉन सिटीजन्स है. दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री. व्हाई विल वी एंश्योर दैट दे नीड दोज रिजर्वेशन राइट्स. तो जो राइट्स रिलेटेड टू रिजर्वेशंस हैं वो राइट्स फ्रेंडली एलियंस के लिए स्पेसिफिकली अप्लाई नहीं होंगे. जो भी नॉन सिटीजन्स है उनको वो सब नहीं मिलेगा. तो फ्रेंडली एलियंस को बाकी जो राइट्स हैं वो मिलेगा. मतलब आप जो मतलब पकड़ लो आपका जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स व्हिच इज फॉर द कल्चरल माइनॉरिटीज को हमने दिया है आर्टिकल 29 और 30 पे कि उनको एक सर्टेन प्रोविजंस हमने दिया है कि वो अपने स्कूल्स बना सकते हैं, वो अपने कल्चरल माइनॉरिटी स्कूल्स बना सकते हैं. तो वो राइट्स उनके बस हमारे सिटीजन्स के लिए है, इनके लिए नहीं है वो चीज. ठीक है. बट एट द सेम टाइम आर्टिकल 21A that is the right to education is a exception to this case. क्योंकि आर्टिकल 21A is also affirmative action right, but ये नॉन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है बिकॉज इंडिया हैज रैटिफाइड the UN Convention on Rights of the Child 1991. एक वो कॉन्वेंशन है, इसको याद रखने का कोई जरूरत नहीं, जस्ट टू नो कि हमने एक इंटरनेशनल कॉन्वेंशन में रैटिफाई किया है कि दैट वी विल एंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन टू एवरीवन. Just for that we will ensure that all the non-citizens as well get the universal access to education in India. ठीक, ये हो गया. अब एनिमी एलियन के लिए क्या है? एनिमी एलियन के लिए भी चीजें सेम है, but at the same time they don't get the protection under article 22, which is the preventive detention right against the preventive detention, right against preventive detention. Preventive detention क्या है? Prevent कर रहे हो someone to preventing someone to commit a crime.
आपको मतलब यू आर अप्रीहेंडिंग दैट ही विल कमिट समथिंग, will commit a crime or will commit something, some law and order situation he will create. तो उस टाइम में आप क्या करोगे, उसको प्रिवेंट करने के लिए पहले से ही आप उसको मतलब कस्टडी में ले रहे हो. दैट इज समथिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन which is which our citizens are protected against by article 22. वो इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. अब सोचो कि अगर एनिमी एलियन है जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा है, वो किसी भी मतलब किसी भी एस्पियोनेज मतलब स्पाइंग ये सब चीजों में इन्वॉल्व हो सकता है, तो उसको वो राइट्स क्यों इंश्योर करें. तो ये एक डिफरेंस है कि आप फ्रेंडली और एनिमी एलियन के अंदर में क्या डिफरेंस है. फ्रेंडली एलियन गेट्स द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 22, बट एनिमी एलियन डजंट गेट दैट प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 22. यू कैन detain him under preventive detention. Now then we come to the part where someone doesn't have a valid legal document. एक ये हो गया, इनके पास valid legal documents are, that is they have the passport, they have the visa which is not expired. But then we come to someone who do not have all these documents, the valid documents. अब यहाँ पे जो differentiation है, we do it on the basis of the purpose or the reason behind why he doesn't have that kind of legal document. First, you can say ki there was a situation in their country, in a country where the from which the in his parent country, in such a way that there is a fear to his life, and he is forced to flee his country. That someone is forced to flee his country due to certain circumstances which leads to fear of life. मतलब लेजिटिमेट रीजन है कि वहां पे टॉर्चर चल रहा है, जैसे हमारा म्यांमार वाला सिचुएशन चल रहा था रोहिंग्यास के ऊपर. हाँ, उनको टॉर्चर किया गया था, उनको किया जा रहा था, उनको गवर्नमेंट सप्रेशन था, गवर्नमेंट ही मतलब उनको मारने के लिए मतलब वो ऑर्डर था गवर्नमेंट से. जैसे श्रीलंका में भी तमिल जो थे उनको उनके ऊपर जैसे टॉर्चर किया जा रहा था. सो दे हैव टू फ्ली, दे आर फोर्स्ड टू फ्ली देयर कंट्री, दे हैव टू टेक रेफ्यूज समवेयर, रेफ्यूज. So that's why we call them refugees. They don't have a valid legal document, but they have a valid reason कि उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है. They have a fear to their life and they are forced to flee their country. So in that case, we call them a refugee. Here also India is not obligated to keep the refugees, because you are उसके लिए भी एक convention है UN में, UN convention on rights of refugees, वो हमने ratify नहीं किया है. So India is not actually obligated to keep the refugees. जब रोहिंग्यास वाला डिबेट चल रहा था कि वो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक आइलैंड है, उसी में उनको रख दिया है, बहुत खराब सिचुएशन है, सब मतलब डिबेट चल रहा था कि इंडिया शुड हैव दैट मोरल रिस्पांसिबिलिटी टू कीप दिस रोहिंग्यास इन अ गुड कंडीशन. और ये सब बांग्लादेश वाज क्लेमिंग कि इंडिया के पास, इंडिया इज बिगर देन अस एंड ही इज नॉट टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी, वी आर द वन हु इज टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी. ये सब डिबेट चल रहा था. बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट we are not bound to keep the refugees at our protection, because we have not signed any international convention on that. ठीक है, on that front. Now the others, अभी ये जो refugees है, जब ये इंटर कंट्री माइग्रेट करते हैं ना, मतलब एक कंट्री है जहाँ पे वो उनका पेरेंट कंट्री, वहां पे उनको उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है. when they move to another country, they are called refugees. But if they if they travel from certain region, मतलब certain region of their parent country to another region within their country, मतलब इंट्रा कंट्री अगर माइग्रेशन हो रहा है, they are called internally displaced. इंटर कंट्री refugees, इंट्रा कंट्री internally displaced. That's it. इतना ये टर्म्स थोड़ा याद रखो, ताकि मतलब अगर कहीं पे आ जाए तो थोड़ा मतलब तुम्हारे दिमाग में वो आएगा, क्यों पेपर ऊपर अगर कभी पढ़ोगे तो उसमें वो चीजें आते रहते हैं, तो समझ में आ जाएगा चीजें क्या है. तो इंटरनली डिस्प्लेस तब बोलोगे कि सेम सिचुएशन सेम था, उनको भी मतलब उनके ऊपर भी टॉर्चर हो रहा है, दे आर आल्सो फोर्स्ड टू फ्ली, बट दे आर नॉट फ्लीइंग टू एनी अदर कंट्री, दे आर कॉल्ड इंटरनली डिस्प्लेस, बिकॉज दे आर जस्ट मूविंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अदर पार्ट व्हिच इज रिलेटिवली better than the part they were residing in. But at the same time, if they are fleeing to whole other country, मतलब अपना country छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, then they are the refugees. That's why we call the Syrian refugees. सीरिया के लोग कहीं और जा रहे हैं, मतलब country छोड़ के अपना. बट यूक्रेन में क्या हुआ, देवर इंटरनली डिस्प्लेस्ड, कि एक जगह में कीव में बहुत ज्यादा केओस हुआ, तो लोग वहां पे छोड़ के और एक जगह में चले गए. देवर इंटरनली डिस्प्लेस्ड यूक्रेन में, यूक्रेन वॉर के सिचुएशन के टाइम में. तो
those are the things that you need to keep in mind in as long as these things are concerned. So हाँ बोलो. illegal migrant और refugee सेम ही है? नहीं मैं बोल रहा हूँ इलीगल माइग्रेंट क्या है. ये रेफ्यूजीज का क्या मैंने बोला था, रीजन्स के ऊपर है, रीजन्स के ऊपर ही ये सब बेस्ड है. ठीक है कि एक के पास वैलिड रीजन है कि उसके ऊपर टॉर्चर हुआ है, ही हैज अ वैलिड रीजन टू फ्ली हिज कंट्री. But at the same time, if you are someone, you are doing it out of your own free will and you don't have a valid legal document, आप just एक border cross करके आ गए हो, you are crossing a border without any valid document, you know that you need a valid document but you are not obtaining the documents and you are just trying to forcefully or illegally cross the border. In that case you are an illegal migrant. यही था ये the next part I was talking की रेफ्यूजीज जो थे उनके पास वैलिड रीजन था. इलीगल माइग्रेंट वो है जिसके पास एक वैलिड रीजन नहीं है. ही शुड हैव अ वैलिड डॉक्यूमेंट, ही कुड हैव ऑब्टेन्ड अ वैलिड डॉक्यूमेंट बट ही इज नॉट डूइंग इट. he would have certain reasons for it, but that is not a valid reason as long as the laws are concerned. So in that case we will treat him as an illegal migrant. तो यही चीज है. हम that is something that you need to know for someone who don't have a valid legal document. सर रिफ्यूजीज के पास क्या ऐसे वैलिड डॉक्यूमेंट्स होंगे मतलब प्रूफ करने के लिए कि दैट दे आर रिफ्यूजीज? नहीं होंगे ना, वही तो बोला कि बट दे हैव द रीजन. मतलब एक वो होता है ना जब एक वॉर चल रहा है, एवरीबॉडी नोज ए कंट्री इन वॉर, कंट्री इज इन वॉर, सीरिया इज इन वॉर, एवरीबॉडी नो दैट. तो वहां से जो लोग आ रहे हैं, दैट्स व्हाई यू वुड सी कि यूएस डिक्लेयर करता है दैट वी विल एक्सेप्ट दिस अमाउंट ऑफ सीरियन रिफ्यूजी इन आवर कंट्री. कनाडा डिक्लेयर्स कि हाँ we will accept this amount of Syrian refugee in our country because they know the situation is such that the people are forced to flee from their country. They have to go somewhere, so it is our moral responsibility to give them refuge in our country. So ये उस बेसिस पे होता है. डॉक्यूमेंट तो किसी के पास नहीं होता ना, इसीलिए तो मैं बोला ये बेसिस ही वही है कि इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है. अब तुम्हारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब तुम मोरली क्या सोच रहे हो कि वो लोग कैसे, मतलब उनका रीजन वैलिड है कि नहीं है, ये एक्चुअली बहुत सब्जेक्टिव है. ठीक है. अब देखो कोई कंट्री, अब नेपाल से लोग आ रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके, उनका तो कुछ नहीं हुआ है, क्यों आ रहे हो? डॉक्यूमेंट लेके आओ अगर आना है. तो वो नहीं आ रहे, मतलब उनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उनको हम इलीगल माइग्रेंट बोलेंगे. ठीक है. एट द सेम टाइम वी नो दैट इन म्यांमार द रोहिंग्यास वर सप्रेस्ड, दे आर टॉर्चर्ड, सो वी ट्रीट देम एज रेफ्यूजीज बिकॉज वी नो दैट दे आर टॉर्चर्ड एंड दे हैव अ वैलिड रीजन टू मूव. ठीक है. यस सर. इंट्रा कंट्री के बारे में क्या बोला? उन्हें हाँ, क्या तो बोलते हैं? इंट्रा कंट्री अगर होगा वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड, मतलब एक जगह से दूसरे जगह को डिस्प्लेस हो गए. मतलब एक जगह में वो लोग रहते थे, उनका घर बार छोड़ के उनको और एक जगह जाना पड़ा बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस दैट वेर देयर इन द रीजन वेयर दे वर रिसाइडिंग प्रीवियसली. वो चीज है कि पहले जहां रहते थे वहां पे सिचुएशन ठीक नहीं है, अभी किसी और जगह में जाना पड़ेगा. जैसे मैंने यूक्रेन वॉर में बोला, कीव जो उनका कैपिटल है, इट वाज कंप्लीटली डिवास्टेटेड बाय रशियन आर्मी, so they have to move somewhere else, right, which is relatively safer. So those people are internally displaced. अब इंटरनली डिस्प्लेस्ड का भी अलग अलग मतलब टर्म्स है. इंटरनली डिस्प्लेस्ड बाय वॉर, इंटरनली डिस्प्लेस्ड बाय नेचुरल फोर्सेस, इंटरनली डिस्प्लेस्ड, ये सब है. मतलब कहीं पे कुछ क्लाइमेट चेंज के वजह से कुछ हो रहा है, कहीं पे फ्लड आ गया, कुछ ये हो गया, तो उनको और एक जगह जाना पड़ रहा है. अभी वॉर के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है. तो ये सब अलग है, वो हमें नहीं चाहिए इस चैप्टर में. हम बस इतना जानना, हमें बस टर्म्स जानने थे. तो रेफ्यूजीज एंड इंटरनली डिस्प्लेस्ड कौन है आपको पता चल गया. इंटर कंट्री वो माइग्रेट कर रहे हैं, देन दे आर रेफ्यूजीज. इंट्रा कंट्री अगर माइग्रेट कर रहे हैं, दे आर इंटरनली डिस्प्लेस्ड. Is that clear? Should we move to the next part? यस सर. So now that we understand this, we will look at the policy of the policy that are related to the citizenship. Okay. Now the story of the law will begin with the constitution. Of course, क्योंकि constitution में ही सब चीजें mention है. बाकी फिर उसके ऊपर क्या law बनना है नहीं बनना है वो through the power parliament does that. We will talk about that. So the first thing is when we look at the citizenship chapter, it is in part 2 of the constitution and contains article from 5 to 11. 5 से 11 तक जितने आर्टिकल है वो सिटीजनशिप के साथ डील करते हैं, एंड इट इज इन द पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन.
And there are certain provisions that are mentioned in the constitution from these articles, in these articles from 5 to 11. You don't have to remember all these substance of these articles, itna kuch chahiye nahi usse, but just know that article 11 empowers the parliament to make laws on matters, on any matter related to citizenship. देखो citizenship is a very subjective term, ये हमेशा बढ़ता जाएगा, मतलब citizens जो तुम्हारे country के हैं, it will eventually grow. It will the kind of citizenship, the kind of population that we had back in 1950 was not the kind of population we have today. So constitution cannot rigidly mention that आप बस इतने लोगों को ही citizenship दे सकते हो, ऐसे लोगों को ही दे सकते हो. The concept and the term around the citizenship is evolving. It is always evolving. So for that reason, the constitution has given power to the parliament to decide on any matter related to citizenship by bringing a law. कोई एक लॉ बनाओ, आप ये पूरा पार्लियामेंट के हाथ में छोड़ दिया कि आप डिसाइड करो कि कैसे सिटीजनशिप को दिया जाएगा, कैसे चलेगा सिटीजनशिप आपके कंट्री में, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज दैट यू वांट टू फॉलो फॉर योर सिटीजंस, दोज आर अप टू यू. You are the law maker of the country. Make laws. Here I am giving power to you. That's what constitution says at article 11. And using that power, parliament enacts citizenship, brought the law, which is the primary law that deals with our citizenship, and this is the law from where all the implications were derived regarding citizenship. That is Citizenship Act 1955. आप जितने भी इसके बाद जितने भी जो आप सुन रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल Citizenship Amendment Act of 2003, Citizenship Amendment Act of 2019, all these citizenship amendments were done to this particular act. So this is the primary act from which whatever the provisions regarding citizenship were derived. ये 1955 में पहली बार आया था, जो कि पार्लियामेंट के थ्रू एनैक्ट हुआ था, राइट? तो टेल मी वन थिंग कि अगर हम अभी जितने भी अमेंडमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, दैट 2003 टू 2019 जो भी हुआ होगा, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल मेजोरिटी के साथ हुआ होगा, कौन से किस टाइप का अमेंडमेंट होगा, ये कौन से अमेंडमेंट के अंडर ये आएगा? थोड़ा कोई बोल सकते हो? कुछ आइडिया है क्या क्या हो सकता है? कौन से सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड करने के लिए कौन से मेजोरिटी हमें चाहिए, कौन सा मेजोरिटी हमें चाहिए होगा? स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, व्हाट काइंड ऑफ सिंपल स्पेशल मेजोरिटी वी विल नीड? बताओ यार कोई. स्पेशल मेजॉरिटी 2. या राइट. देखो अभी क्या है कि सिटीजनशिप के आप मतलब सब चीजें जो भी है ये डिराइव कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन से. ऑल्दो क्या हुआ कि इसमें स्पेशल मेजोरिटी 2 इसलिए लगता है, आपको स्टेट के रेटिफिकेशंस नहीं चाहिए, बिकॉज यू सी दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑलरेडी एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू टेक एनी डिसीजन ऑन मैटर्स ऑफ सिटीजनशिप. ऑल्सो द सिटीजनशिप एज अ मैटर is mentioned in your entry number 17 of schedule 7 in the union list. Union list में citizenship as a concept वहां पे added है. आप इस लॉ में जो भी चेंजेस करोगे, that means you have to change that the provisions under that union list. तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो चेंज करोगे. तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज ला रहे हो, that means you need or that is also affecting only the union part of the schedule 7. इसमें अगर आप कुछ amendment कर रहे हो, then you have to bring it through a special majority. Since the special majority is not clearly mentioned, that means we will assume that the default majority, that is the second type of special majority, where you have to get the more than 2/3 of the present and voting, and more than half of the total strength of the house to say yes on that particular amendment. तो ये चीज है, इसको आप याद रखिए कि यहाँ पे स्टेट का कोई से ही नहीं है. सिटीजनशिप के मैटर में स्टेट का कोई से नहीं है. आप यहाँ पे भी वो प्रिंसिपल लगा सकते हो, सेंटर स्ट्रॉन्गर देन स्टेट, रूल नंबर 2, वो चीज है. और ये जो चीज क्यों हम वहां पे अमेंडमेंट में क्यों ला रहे हैं कि यूनियन लिस्ट में हमारे एंट्री नंबर 17 में सिटीजनशिप एज अ सब्जेक्ट है. यूनियन का वो एक्सक्लूसिव टेरिटरी है, वो वहां पे बस यूनियन ही लेजिस्लेट कर सकता है. यूनियन मतलब पार्लियामेंट. पार्लियामेंट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंटर एक्चुअली.
तो पार्लियामेंट में वो मतलब जो भी लॉ आएंगे, जो भी होगा, वो बस पार्लियामेंट ही बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे कोई इंटरवीन कर नहीं सकते, ठीक है। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। now that the constitutional citizenship act came, उसके साथ देखो एक एक्ट होता है ना, तो उस एक्ट में आप सब कुछ तो डिफाइन नहीं कर सकते हो। एक एक्ट आप लेके आओ, एक लॉ लेके आए हो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, आप उसमें सब चीजें तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो ना। एज अ लॉ मेकर यू हैव अ लिमिटेड कैपेसिटी। आप किसी चीज के ऊपर लॉ बना रहे हो, यू डिलिबरेट, यू रिप्रेजेंट वेरियस व्यूज ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इन द पार्लियामेंट, एंड देन यू ड्राफ्ट अ लॉ एंड देन यू पास इट। But at the same time, this law going to be applicable in different parts of the country, different parts of the society. अलग अलग लोग हैं, अलग अलग रीजन है, रीजनल वेरिएबिलिटी बहुत होता है। एक मतलब एक लॉ को लेके आप पूरा वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच में अगर आप डाल दोगे तो इशू ही रहेगा। So in that case, what do is parliament delegates its legislative power to the executive. Delegates मतलब मेरे पास सारे जितने भी चीजें हैं, सब चीजें मैं नहीं करूंगा, कुछ चीजें मैं और आपको मतलब आप लोगों में बांट दूंगा, ताकि आप उस चीज को लेके और थोड़ा मतलब डिटेल वे में, टेक्निकल वे में आप उसको डिफाइन कर सको उस लॉ को। So in that case, what happens is the Citizenship Act of 1955 empowers the executives to make rules on the Citizenship Act. तो हमेशा जब भी देखना कि कहीं पे rules लिखा हुआ है, that means it has been given by a executive order. It has been brought in by a executive order. Rules जैसे Motor Vehicle Amendment Act, Motor Vehicle Act, जो भी Motor Vehicle Act है, वो पास होता है पार्लियामेंट में, बट जब इंप्लीमेंट होता है कहीं कहीं में, तो क्या लिखा होता है, मोटर व्हीकल रूल्स लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि पिलियन राइडर को भी आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा, जो भी चीजें वो सब है, वो सब तो थोड़ी पार्लियामेंट में बैठ के आपको बोलेंगे कि आप पिलियन राइडर को भी हेलमेट पहनाओ, वो चीजें तो नहीं होगा ना। इट इज जस्ट अ overview of the law, but when you implement it on the ground, you need some technical details, you need it to be very specific, law needs to be very specific, otherwise there will be violations. तो उस चीज को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं, व्हेन दिस द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स इट बाय ऑर्डर। सो उस हिसाब से हमारे सिटीजनशिप एक्ट से सिटीजनशिप रूल्स भी आए, और वेरियस रूल्स आर देयर, सिटीजनशिप रूल्स बहुत सारे कभी कभी आए हैं उस टाइम, प्रेसिडेंट ने कभी प्रेसिडेंट के थ्रू वो ऑर्डर इशू किया जाता है। तो ये सब ये ऐसे काम करता है। मतलब पहले पार्लियामेंट ने बनाया लॉ विच वाज सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सिटीजनशिप एक्ट of 1955. It empowers the executive to use the delegated legislative power to make citizenship rules. So that's what you need to understand. अब मैंने बोला कि एग्जीक्यूटिव वो चीज करेगा, सिटीजनशिप रूल्स नोटिफाई करेगा। तो हमारे यहाँ पे जो नोडल एजेंसी व्हिच डील्स विद सिटीजनशिप इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करता है सिटीजनशिप का, क्योंकि it is a matter that is related to your country, your citizens, and also you need to keep a check on the people they are who come from the outside of the country, because उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी इन्वॉल्व है कि बाहर से जो आ रहा है उसका इंटेंशन क्या है। इफ ही वांट्स टू स्टे इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड वांट्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज ही लव्स इंडिया, और ही हैज सर्टेन हिडन मोटिव बिहाइंड इट, तो वो सब चीजें के साथ भी डील करना होता है। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज योर नोडल मिनिस्ट्री टू इम्प्लीमेंट एनी सिटीजनशिप रूल्स that are there, ठीक है। And one more thing to note is that हाँ, हमारे जो सिटीजनशिप के जो भी प्रोविजंस है इन कॉन्स्टिट्यूशन, इट डील्स विद हाउ यू बिकम अ सिटीजन और हाउ यू लूज द सिटीजनशिप after the commencement of the constitution, that is after 1950, 26 जनवरी ऑफ 1950। तो उससे पहले वाले का सिचुएशन अलग था, वो कुछ चीजें प्रोविजंस थे, वो आपको जानने का कोई जरूरत नहीं, वो एग्जाम्स में कभी पूछे भी नहीं जाएंगे, और उसको जान के भी कोई कुछ मतलब कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं, बिकॉज दैट वाज ऑलरेडी द पास्ट। तो हमें बस ये जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन डील्स with the acquisition or the termination of the citizenship after the enactment of the constitution or the enforcement of the constitution from 26th of January 1950। ये चीज आपका क्लियर रहना चाहिए। हाँ, तो अभी देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करते हैं कैसे हम अक्वायर कर सकते हैं अपना सिटीजनशिप, को कैसे लूज कर सकते हैं सिटीजनशिप, उस बारे में थोड़ा बात करते हैं।
सो उस बारे में फर्स्ट बात करने से पहले बस एक चीज आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, दैट कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ, ये मैंने एक चीज बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में दो प्रिंसिपल है। एक प्रिंसिपल है कि ये 1950s के बाद ही जितने चीजें होते हैं उनके साथ डील करता है। दूसरा प्रिंसिपल है, इट डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। व्हाट इज सिंगल सिटीजनशिप? That means you are just a when you are called the citizens of India, that means you are only the citizen of the India and not the citizen of any state. आप नहीं बोल सकते आई एम ए सिटीजन ऑफ कर्नाटका, आई एम ए सिटीजन ऑफ ओडिशा, आई एम ए सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र, आई एम ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. You cannot say that. You are only given the identity of citizen of India. That is, you are the citizen of a single unit, that is India. But that is not the case in US में उनका dual citizenship है. They have a citizenship of their own state and then they have the citizenship of their own country, that is the United States of America. ये क्यों होता है? आप easily वो एप्लीकेशन करो उस रूल का जो मैंने बोला था, दैट इज हमारे इंडिया में क्या होता है, सेंटर स्ट्रॉन्गर देन स्टेट. तो सेंटर ही बस उस चीज को, मतलब सेंटर को ही आइडेंटिफाई करके दिया गया है कि यूनियन को ही आइडेंटिफाई करके दिया गया है कि द पीपल ऑफ द इंडिया विल ओनली बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट द स्टेट. तो स्टेट्स को अगर आप एम्पावर कर दोगे कि स्टेट के सिटीजन से, अब सब लोग अपने अंदर वो है ना, इतना डाइवर्सिटी के अंदर आप अगर स्टेट्स को भी अलग अलग है बोल के उनके मतलब एक आइडेंटिटी बनाओगे, it will create havoc, it will create a very disorder, a great disorder in our society. So but वहां पे क्या है, उनका state stronger than the state center, so they can have मतलब उनका खुद का भी एक आइडेंटिटी है जहाँ पे वो लोग रहते हैं, and then they are also acknowledging that we are also part of our country. तो उनके लिए वो सही है, because they are the federation but we are the union. तो हम citizens of India, they are the citizens of both USA and their respective states. तो वहाँ पे dual citizenship काम करता है, हमारे यहाँ पे सिर्फ single citizenship है. And also that the single citizenship also means कि you can only be the citizen of India when you are the citizen of India, you can only be the citizen of India and not any other country. आप किसी और मतलब आप डुअल सिटीजनशिप इन टर्म्स ऑफ उनका सिटीजनशिप भी लेके रखा है, पकड़ लो मैं कनाडा का भी सिटीजनशिप ने लेके रखा है, इंडिया का भी सिटीजनशिप लेके रखा है, ऐसे नहीं होता है हमारे यहाँ पे, वो अलाउड नहीं. if you want to be a citizen of India, you will always only be the citizen of India. हम किसी के सेकंड चॉइस नहीं बनेंगे. हम अगर आप हमारा सिटीजन हो तो बस हमारा हो, कहीं और जाके ज्वाइन मतलब किसी और का सिटीजनशिप ले रहे हो मतलब आपका टर्मिनेट कर दिया जाएगा इंडियन सिटीजनशिप. ठीक है, ये क्लियर है, ये वाला प्रिंसिपल क्लियर रखना, दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सिटीजनशिप एक्ट एक्चुअली अलाउज only single citizenship, that is a citizen of India. You cannot hold a passport or citizenship of any other country while you are holding a passport of India and you are calling yourself a citizenship of citizen of India. ये जब होता है तो आप अलग कंट्री के पासपोर्ट या सिटीजनशिप नहीं ले सकते. अगर ले रहे हो then you have to give up your citizenship here in India. ये चीज क्लियर रखना. Then we will see how to acquire what all are the processes to acquire the citizenship in India. So the first thing that you can acquire through is by birth. अब by birth मतलब आप जन्म होने के साथ ही आपको मिल रहा है सिटीजनशिप के राइट. And this has evolved through years. ये चीज इवॉल्व होता रहा है, the concept of citizenship by birth. And we can understand it by a timeline which is from 1950 to 87, then again from 87 to 2003, and then 2003 onwards. From 1950 to 87, the only clause was that you must be born in India, irrespective of whatever the nationality of your parents, you must be born in India, then you will be given the citizenship by birth. मतलब आप पैदा हुए, आपके पिता माता किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, यहाँ से कोई है नहीं है, उस चीज पे फोकस नहीं था. एट दैट टाइम वी आर वेरी लिबरल. क्या हमारे ऐसे भी बहुत मतलब वो टाइम हमें पता नहीं था कि हमारा ऐसा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने वाला है कि हमें सिटीजनशिप देने में भी डर लगे लोगों को. बट at that time the provision was the only provision was focused on the person to whom the citizenship was to be given. Only focus was there
कि आप अगर यहाँ पे आपका जन्म यहाँ पे हुआ है, at that then you will be given the Indian citizenship, irrespective of the citizenship of your parents. But then as the time moves from 87 to 2003, the provision was such that first of all you have to be born in India. That was constant. Yes, सब में same. You have to be born in India by birth, but both of your parents must be Indian citizens. ये पूरा स्ट्रेंजेंट कर दिया कि भाई दोनों का पेरेंट्स अगर इंडियन सिटीजन है तभी आपको सिटीजनशिप मिलेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। नो मैटर अगर आप यहाँ पे बॉर्न हुए हो तब भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। अगर बट फर्स्ट क्लॉज वाज कि आपको यहाँ पे आपका जन्म यहाँ पे होना चाहिए। सेकंड वाज कि बोथ द पेरेंट्स शुड बी योर इंडियन सिटीजन्स, और किसी एक में भी अगर गड़बड़ी है तो आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। दैट मींस इफ योर वन ऑफ योर पेरेंट्स वाज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, देन यू विल नॉट बी गिवन द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। Is that clear? Then after 2003 we did a little modification to that and we become a bit lenient with changing times, and then from 2003 onwards, which is still applicable in present time, you must be born in India, and then one of your parents or one of your parent must be an Indian citizen, and the other one should not be an illegal migrant. And this is where the first time Citizenship Act said about the term illegal migrant. यहाँ पे पहली बार आया था, ठीक है। ये जो वाला 2003 वाला जो फेज आया, अभी जो चीज है यहाँ पे हमने पहली बार देखा सिटीजनशिप एक्ट में कि इलीगल माइग्रेंट एज अ टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड, where one of your parents should be the citizen of India and the other one should have valid documents. वो हमारे कंट्री के सिटीजन नहीं भी हो सकते हैं, but at the same time he or she should have the required passport or required visa that needs to be treated as a valid document. इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द इवोल्यूशन, और ये अभी प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में है कि आप यहाँ पे आपका बर्थ यहाँ पे हुआ है एंड योर वन पेरेंट इज योर द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अदर इज नॉट द इलीगल माइग्रेंट। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट द बर्थ। एंड देन कम्स द डिसेंट, सिटीजनशिप बाय डिसेंट। डिसेंट मीन्स you are not born in India, you are born outside of India. But when you are born, one of your parent is a citizen of India. One of your parent must be a citizen of India. In that case, what happens is wherever you are born, there will be an Indian embassy, and within a stipulated time period, maybe 6 months or 1 year, you have to go to the Indian embassy and register for the citizenship of your register for a citizenship. Your application will be processed and the government of India will give you the citizenship. समझ रहे हो? मतलब तब क्या होता है कि आप यहाँ पे आप पकड़ लो, अभी यूएस में आप आपका बर्थ यूएस में हुआ है, you are not in India, but one of your parents is still a citizen of India when you are born. What you will do, you will go to the Indian embassy at US, you will say that see, we don't want your citizenship, US citizenship, we want our Indian citizenship, we will keep that. So for that Indian embassy को जाके वहाँ पे आप रिक्वेस्ट दोगे कि that I want to be a citizen of India. Of course your parents will do that, citizen of India. तो उसके लिए क्या होगा, एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, वो देने के बाद आपका वो प्रोसेस होके you will be treated as a citizen of India. हाँ, तो ये एक चीज देखने वाली चीज है कि when we talk about birth and descent, citizenship by birth and citizenship by descent, it is always automatic. मतलब आपको birth automatically आपको मिलेगा, मतलब ये जो प्रोसेस है ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि हाँ, अगर आप एक बाय बर्थ हो रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिलेगा। ये कंडीशंस है उसमें, बट दीज आर ऑटोमेटिक, मतलब ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि आप जाके रजिस्ट्रेशन करो, ये सब चीजें। बाय डिसेंट इज आल्सो ऑटोमेटिक, बट यू जस्ट हैव टू इन्फॉर्म द इंडियन एम्बेसी अबाउट योर इंटेंशन कि हाँ, मुझे ये यूएस के सिटीजनशिप नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, आई वांट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो ये दोनों चीजें ऑटोमेटिकली होता है। बट बाकी जो 3 चीजें लिखा हुआ है, दैट इज रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, इन दिस प्रोसेसेस यू हैव टू गो थ्रू एप्लीकेशन प्रोसेस। इन सब चीजों में एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है, दैट यू हैव टू बी देयर फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम इन इंडिया, देन देयर आर सर्टेन प्रोविजंस। तो ये बहुत है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है ना, बाय बर्थ और बाय डिसेंट you have to give up citizenship to a child actually, मतलब जो अभी माइनर है, he doesn't have that kind of, मतलब उतना वो कॉम्प्लेक्सिटी ही नहीं है उसमें कोई, मतलब वो एक बच्चे को सिटीजनशिप देने में क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है, बस आप उसके पेरेंट्स को देख लो, इफ वन ऑफ देम इज सिटीजन एंड अदर वन इज नॉट इलीगल माइग्रेंट, दे दो, खत्म बात।
But in process of registration, naturalization, incorporation, you actually treat with someone who is above 18 और मतलब ये लोग जो होते हैं इनको एटलीस्ट एक टाइम पीरियड तक रहना पड़ता है, मतलब दे वेयर पार्ट ऑफ सम अदर कंट्री, बट अभी आ रहे हैं आपसे सिटीजनशिप लेने के लिए बिकॉज उनको इंडिया में रहना है, मतलब दे वेयर सिटीजन ऑफ अ कंट्री बिफोर, तो आप उनका एलिजियंस चेक करोगे कि हाँ भाई तुम हमारे कंट्री में सही में रहना चाहते हो कि नहीं, आपका कोई अलग इंटेंशन है. सो फॉर दैट यू नीड टू गो थ्रू एप्लीकेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन, दैट इज इट्स अ कम्बरसम प्रोसेस. तो ये चीज समझना, ठीक है. तो वो हो गया. एंड अभी बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन का. रजिस्ट्रेशन का कुछ नहीं, registration is meant for the person with Indian origin, for person of Indian origin, and for the OCI, overseas citizens of Indian card holders. PI और OCI क्या है, ये वही लोग हैं जिनका एक एंसेस्टर यहाँ पे इंडिया में बॉर्न हुआ था, बट दे वेर सिटीजन ऑफ अदर कंट्री राइट नाउ, बट दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सिटीजन ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया, दे वांट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. मतलब एक अगर मैं अभी एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूँ, मतलब मेरे कोई दादा पिता जो भी है वो लोग इंडिया में थे, वो लोग इंडियन सिटीजन थे, बट आई एम नॉट अ इंडियन सिटीजन राइट नाउ, आई एम अ सिटीजन ऑफ सम अदर कंट्री, बट आई वांट टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया. So I have to go through a process. For that you need registration, and for that, before the application of the registration process, you have to be resident in you have to be residing in India for 7 years. 7 साल आपको एप्लीकेशन से पहले रहना पड़ेगा, तब जाकर आप एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हो, ठीक है. ये देखो ये जो डेट्स हैं, ये जो टाइमलाइन, ये जो मतलब ईयर्स है, ये याद मत रखना, ये बस जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि कैसे होता है. एंड देन कम्स द नेचुरलाइजेशन. नेचुरलाइजेशन इज फॉर ऑल अदर पीपल हु वांट, anybody who wants to be part of India, and he has to stay in India for at least 11 years. But here in naturalization process there can be exceptions. If you are serving government in any capacity, government के साथ आप काम कर रहे हो, पकड़ लो आप government आपको spy की तरह use कर रहा है और नहीं तो और कोई government services में आप हो, but you are a citizen of other country, in that case government as a reward can reward you with the citizenship of India. तो आपका वो एक एक्सेप्शन है नेचुरलाइजेशन में, आपको 11 साल वेट नहीं करना पड़ेगा. अगर गवर्नमेंट इज हैप्पी इनफ विथ यू, दे कैन गिव यू द सिटीजनशिप. और भी कुछ है, हम लोग सिटीजनशिप किस किस को दे सकते हैं. देयर वर सर्टेन, कोई लिटरेचर में काम कर रहा है, कोई साइंस में काम कर रहा है, उनको भी हम दे सकते हैं, बट दैट इज नॉट नीडेड एज फार एज योर प्रीलिम्स इज कंसर्न. हाँ, इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन इज मींस आप समझ लो कि वी एक्वायर्ड अ टेरिटरी, इंडिया एक्वायर्ड अ टेरिटरी, that territory was part of some other country. If they or नहीं भी हो सकता है किसी other country का, if they have the citizenship of that other country, then that needs to be terminated and India needs to give them the citizenship of India. So in that case incorporation is the process. जैसे हम कल बात कर रहे थे about the बेरुबरी, about the enclave transfer of between India and Bangladesh, where Bangladesh transferred some of its enclaves to us and we transferred some of the enclaves to Bangladesh. So in that case, the enclaves that were transferred to us from Bangladesh, those citizens were already those people were already the citizen of Bangladesh. तो उनका वो टर्मिनेट करके हमने उनको फिर से सिटीजनशिप दिया इंडिया का. सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन. वो इनकॉर्पोरेशन के थ्रू हुआ था. So that's all about how you acquire. Now how you lose your citizenship. एक मिनट. हाँ बोलो. सर नेचुरलाइजेशन मतलब सर 11 ईयर्स, सर इसका क्या मतलब है? मतलब सर 11 साल बाद अपने आप हो जाएगा? नहीं अपने आप नहीं होगा ना, बोला ना मैंने, एप्लीकेशन प्रोसेस करना पड़ता है. सर तो फिर ये रजिस्ट्रेशन और फिर इसमें क्या फिर डिफरेंस क्या हुआ? वही मैं बता रहा हूँ आपको. देखो, नेचुरलाइजेशन कैन बी डन बाय एनीबॉडी, कोई भी कर सकता है, ठीक है. मतलब कोई भी किसी कंट्री का कोई भी सिटीजन है, ही वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, वो कर सकता है. फॉर दैट, बिफोर द एप्लीकेशन प्रोसेस, जब भी आप एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हो फॉर द इंडियन सिटीजनशिप, बिफोर दैट यू हैव टू बी रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 11 years. उसका एक प्रूफ होना चाहिए. वो होता है, वो प्रोसेस में उनका प्रूफ कर सकते हैं, वो पुलिस वेरिफिकेशन होता है that they have to stay in India for 11 years before they are eligible to apply. वो एक eligibility criteria है. Eligibility criteria है 11 years का, so that you can apply first. अपने आप नहीं होता है. application डालोगे, वो फिर केस बाय केस बेसिस में होगा. वो भी डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट है कि आपको देंगे कि नहीं.
ऑटोमेटिक इसमें कुछ नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन, बर्थ, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन, इसीलिए मैंने बोला कि ये तीनों आते हैं अप्रूवल में। अप्रूवल में क्यों आते हैं? बिकॉज even if you are applying for a citizenship, that is not guaranteed, it is not guaranteed that you will be given the citizenship. It is the discretion of the government that if the government wants to give you the citizenship, but there are certain eligibility criteria for application in each part. तो नेचुरलाइजेशन में क्या होता है कि 11 साल रहोगे, कोई भी सिटीजन का कहीं भी किसी भी कंट्री के हो सकते हो, डजंट मैटर। बट रजिस्ट्रेशन एक्चुअली मेंट, इसको एक अलग सा प्रोसेस किया गया फॉर दी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड द ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। वो एक दो टर्म है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये समझ लो कि पीआईओ वो है जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो है जिनके एंसेस्टर्स इंडियंस थे, मतलब सिटीजन्स ऑफ इंडियंस थे। बट क्योंकि वो लोग बाद में माइग्रेट कर गए हैं, अब तुम उस कंट्री में जहां माइग्रेट किए थे उस कंट्री में आपका जन्म हुआ है एंड यू आर द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, बट नाउ यू वांट टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इन दैट केस यू हैव टू गो थ्रू द रजिस्ट्रेशन। और क्योंकि आपके एंसेस्टर्स यहाँ से थे एंड यू हैव अ लिनिएज, तो आपके लिए थोड़ा लिनियंसी भी रखा जाएगा। फॉर दैट रीजन यू हैव टू बी ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 7 years बिफोर द एप्लीकेशन प्रोसेस। इज दैट क्लियर? यस। ठीक है। तो रिफ्यूजीज के लिए भी नेचुरलाइजेशन हो सकता है जो 11 years रहे? हो सकता है, हो सकता है। हम उसके बारे में भी बात करेंगे ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ है, वो भी कर सकते हैं नेचुरलाइजेशन के थ्रू। सो द फर्स्ट वन हियर इज हाउ टू टर्मिनेट। तो फर्स्ट वन हियर इज रिनंशिएशन। तो ये क्या है? रिनंशिएशन मतलब आप जा रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोल रहे हो कि सर मुझे आपका सिटीजनशिप नहीं चाहिए, I don't want to be a part of your country anymore. I want to be a part of any other country. I want to take citizenship of any other country. So I am here to voluntarily give up my citizenship. आप voluntarily give up कर रहे हो Indian citizenship to acquire a citizenship of some other country. Is that clear? Renunciation means कि आप आपको किसी अदर कंट्री में रहना है, आप वहां का सिटीजनशिप चाहते हो, इन दैट केस यू गिव अप द इंडियन सिटीजनशिप वॉलंटरीली। अब जाके गवर्नमेंट को बता रहे हो कि नहीं और नहीं चाहिए आपका सिटीजनशिप, आप रखो, हम we want to be part of some other country. In that case, renunciation, it is automatically terminated the moment you notify the government about your intention to become a citizen of any other country. ठीक। अब टर्मिनेशन क्या है? टर्मिनेशन एक मजेदार चीज है, जहां पे आपने ले लिया है किसी अदर कंट्री का सिटीजनशिप, बट आप छुप गए हो, आप बताए नहीं हो गवर्नमेंट को, बट गवर्नमेंट इज वेरी इंटेलिजेंट, उसको पता चल गया, then they will terminate your passport and they will deregister you from the citizenship of India. तो ये है टर्मिनेशन। मतलब you have become a citizen of any other country, but you have not notified the government that you have become a citizen of other country, and when government comes to know that you have acquired the citizenship of any other country rather than India, it will automatically terminate your citizenship. हमने बोला था that this is the principle, this is the application of the principle that we talk, the single citizenship. एक ही रख सकते हो, दो जगह नहीं रह सकते, ठीक है। तो देन अदर वन इज डिप्राइवेशन। डिप्राइवेशन में क्या होता है? आप सोचो कि किसी को आप डिप्राइव कर, दैट यू टेक अवे समथिंग दैट यू हैव गिवन टू समवन। हाँ, जब आप पकड़ लो आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या फिर नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में किया है, acquired the citizenship of India, but when the verification happens, the government found that the documents that you have submitted are fraudulent. आपने कुछ अपना नाम चेंज करके कुछ भी डाल दिया है उसमें, मतलब देयर इज सम फॉल्ट इन द डॉक्यूमेंट। जब एक्चुअली ये कोई आपने पेपर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा मुझे पता नहीं, बट आपको याद होगा अगर किसी ने पढ़ा होगा कि ड्यूरिंग दिस 2019 कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पेपर में आ रहा था तब कि मतलब देखो हमने क्या होता है, गवर्नमेंट नोटिफाइज दैट वी आर गिविंग सिटीजनशिप टू दिस पर्सन who belongs to this country, now have resided for this amount of time, if anybody has any issue kindly notify in this website, ये लिखा होता था तब।
आता था ये some XX person from Afghanistan has come to acquire the citizenship of India. He has been staying in India for last 5 years or 7 years, जो भी है, from this to this state. If you know this person or if you have any claims to made about that person's citizenship, please do so in this. मतलब आपका complaint आप register कर सकते हो, and based on that the verification will again happen, and if there is some fault that is detected in the process, then the citizenship again be taken away from that person immediately. पहले दिए थे, दे दिया था citizenship आपको based on your application, but when someone complains कि आपका आप जिसको दिए हो वो कोई और है, that he has been trying to disguise himself or he has submitted fraudulent documents, in that case a government deprives you from the citizenship of India and takes away the citizenship. That's why it is called deprivation. Is that clear? तो इतना चीजें आपको हो गया क्लियर कि how will you acquire the citizenship of India? By birth, by descent, by registration, by naturalization, by incorporation. By birth and by descent are almost automatic in nature. Registration, naturalization, and incorporation are goes through a approval process. By birth, हमने explain किया कैसे हो सकते हो. By descent आप आउटसाइड इंडिया, बाय बर्थ में कंडीशन एक फिक्स है जो कि आप इंडिया में आपको पैदा होना पड़ेगा, आपका जन्म इंडिया में होना पड़ेगा. डिसेंट आप आउटसाइड द इंडिया हो बट आपके एक पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है. रजिस्ट्रेशन पीआईओ और ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए है, उनके लिए थोड़ा लीनियंसी है, उनको 7 साल रहना पड़ेगा बिफोर दे कुड अप्लाई फॉर सिटीजनशिप. नेचुरलाइजेशन आप कोई भी हो, किसी भी कंट्री के हो, नो डजंट मैटर, यू हैव टू स्टे इन इंडिया फॉर 11 years before the application. That is the eligibility criteria. In certain cases, when you serve the government in certain capacity, government can reward you citizenship through naturalization. And incorporation means whenever India acquires a territory, India gives the citizenship to that part of those people. And in that case, we discussed the India-Bangladesh enclave exchange. In that case, you will be given citizenship through incorporation. And how do you lose your citizenship? By voluntarily giving up, or you have not told the government, but the government finds out, that is termination. And then if there is a fraud process, fraudulence found in your entire application process, then also government can deprive you from the citizenship of India. इसमें कोई डाउट है किसी को? Should we move? Yes, sir. Now let's talk about what all are the changes that were made in Citizenship Amendment Act 2019, जो कि which was an amendment to the Citizenship Act of 1955, as I told you earlier in the class. So as we discussed that by birth and by descent, you have to be born in India, and parents should one parent should be a citizen of India, one parent should be a legal migrant. In that case, the process is simple. You will be given the citizenship directly, automatically. In process of naturalization, registration, and incorporation, the only thing that matters is you are not an illegal migrant. You are a legal migrant. You have valid documents, and you have been staying in India for some time, and you actually want to be part of India because you love India. You want to be a part of India because you want to stay here through your entire life. So why not take a citizenship? So in that case, also the process is easy. You go to the government, you apply for a process, and then you acquire the citizenship of India. But as I said, that in the Citizenship Act 1955 clearly mentions that no citizenship can be given to any illegal migrant. Illegal migrant को हम citizenship नहीं दे सकते हैं. That means कि if they don't possess the valid documents for the to show for their claim to citizenship, they cannot be given citizenship. So here what the changes we have made. So in the Citizenship Act 2019, what we have made is the amendment to the term illegal migrant. ये जो illegal migrant वाला term था ना, उसी में changes किए हैं हमने. क्या change किया? Now उसमें 5 religion दिए थे. Just know that if you are a non-Muslim, उतना जानो, 5 religion आपको कोई नहीं पूछेगा कौन 5 religion इनमें से exception थे, कोई नहीं पूछेगा. Just know that if you are a non-Muslim coming from countries Afghanistan,
Pakistan and Bangladesh, and you have entered India before 2014 December or 31st 2014 से पहले आप इंडिया आ गए थे, and you are coming from these countries, Afghanistan, Pakistan and Bangladesh, then you will no longer be treated as a illegal migrant. Is that clear? हमने बस डेफिनेशन में चेंज कर दिया. द इलीगल माइग्रेंट मतलब क्या, 1955 वाज वेरी रिजिड अबाउट इलीगल माइग्रेंट, एंड इट डजंट मेंशन व्हाट इलीगल माइग्रेंट एक्चुअली इज. खाली बोला गया था कि हमने उसको इंटरप्रेट किया है जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, दैट ही इज अ इलीगल माइग्रेंट और ही और शी इज अ इलीगल माइग्रेंट. बट here what we did was we amended this part of the Citizenship Act of 1955 where illegal migrant were defined again, that it was just an exception clause that was added, if you are a non-Muslim who belongs to a country, Afghanistan, Pakistan and Bangladesh, and you have entered India before 2014 December 31st, which is a cut-off date that you have decided. सब में देखा आपने कि एक cut-off date decide होता है कि इस दिन से जो आया है उसका इस दिन से ये, तो एक cut-off date decide होता है when you decide about citizenship. तो एक करना पड़ेगा ना इससे, क्योंकि लोग तो आते जाते रहते हैं, तो आपको सिटीजनशिप अगर डिफाइन करना है एक डेट के हिसाब से डिफाइन करना पड़ता है कि इतने तक जितने लोग थे ये हमारे सिटीजन है, तो उसी हिसाब से you have decided a cutoff which is 2014 December 31st. So if you are if you fulfill these criteria, then you will no longer be treated as an illegal migrant. ठीक है? So and then if you are not treated as an illegal migrant, that what does that mean? That means you are eligible to apply for the citizenship of India through naturalization. You are eligible. अब ये बहुत बड़ा डिबेट छिड़ गया था उस टाइम में कि यार दे दिया उनको सिटीजनशिप, दिया नहीं था उनको, बस एलिजिबल बनाया था कि हाँ आओ आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो. You will be able to submit the documents only. You are not entitled to get the citizenship even if you are fulfilling these two criteria, because as I told you, it is a case-by-case basis through naturalization. The government has the discretion to give the citizenship to someone if all the applications were correct and all these processes were correct. Then also government can decide not to give you the citizenship. But it's completely the call of the government. ठीक है, तो बस उनको eligible बनाया गया. और क्या हुआ? Second thing that we amended and changed was कि जो naturalization में वो जो मतलब जो ये था 11 years का हमने बात किया था कि that you have to ordinarily reside in India for 11 years before the application process, that was reduced to 5 years. Now if you have entered before 2014 and you were staying in India for 5 years, then plain and simple you are eligible to apply through naturalization process. And this 5 years was only applicable to this set of people who came from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, and who were non-Muslims and entered before 2014. इनके लिए बस है. And it is still मतलब naturalization के process के through होना is still 11 years for anybody else. Others के लिए अभी भी वो same है, but उनके लिए इस group के लिए इनको बोला जाता है कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिएशन करके एक टर्म है. इनको डिफरेंशिएट किया गया है पूरा ग्रुप से और इनको दिया गया है कि आप 5 साल अगर रह चुके हो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, बट नॉट द डायरेक्ट सिटीजनशिप विल बी एप्लीकेबल टू. दिस इज ऑल दैट, यही है, इतना ही उसमें ऐड किया गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में, which amended the Citizenship Act of 1955, where the term illegal migrant was amended to define who the illegal migrant is and how he can be treated as a legal migrant, who becomes a legal migrant for that case. And the process of the duration to apply for the naturalization process was reduced from 11 to 5. That's it. That's all that was happened in the Citizenship Act of 2019 Amendment Act. उसके साथ NPR NRC ये सब आया, वो that's a different thing. NPR NRC is a part of the census process. अब आसाम में आपने वो अप्लाई किया because you wanted to check कि जब मतलब एक टाइम के बाद जहाँ वो refugees बहुत सारा इन्फ्लक्स हुआ था जब बांग्लादेश वॉर के बाद, तब से तो वो उनको अकाउंट में नहीं लिया गया था, तो उसके लिए वो आसाम में एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना था, NPR करना था. NPR वाज लाइक अ नेशनल पीपल्स रजिस्टर, जिसमें बस आप लोगों को काउंट करते हो बाय सर्टेन पैरामीटर्स जो 6 महीने से ज्यादा एक जगह में है उनका एक काउंट लेते हो, जो कि आपका प्रिकर्सर है टू NRC, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, जिसको मतलब NPR पहले लिया जाता है, उसके बाद NRC आता है. NRC इज लाइक अ
मतलब फिर वो जितने आप सिटीजन है उनका एक रजिस्टर, आपका नाम पता रहेगा वो आपका रजिस्टर, रजिस्टर में जैसे नाम पता रहता है वही है। तो दैट वाज अ डिफरेंट इशू कि उनके ऊपर क्या डिबेट हुए क्या नहीं हुए, यू विल नेवर बी आस्क्ड क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन दैट, सो वी डोंट नीड दैट। हमें बस सिटीजनशिप एक्ट में क्या अमेंडमेंट हुआ था वो हमें जानना था, वो हमने जान लिया। दैट कहाँ पे चेंज हुआ है, इलीगल माइग्रेंट टर्म चेंज हुआ है, उसमें क्या ऐड हुआ है वो हमने सीखा, एंड जो टाइम था वो बस इनके लिए रिड्यूस किया गया फ्रॉम 11 to 5। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू नो, नथिंग मोर नथिंग लेस। दिस इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। तो यही था। And the sources that you need to refer is the 6th chapter of Lakshmikant. So you have to do the 6.1, the table 6.1 में जो PIO, OIC और NRIs के बीच में जो differentiation था ना, उसमें थोड़ा चेक कर दीजिएगा आप लोग। वो serial number 1, that means who the serial number 1 has a heading of who means कौन कौन है, वो definition दिया है, वो थोड़ा देख लेना। Then you need to do who is eligible, that is the serial number 2। ये नहीं करना है, बस अभी आपको 7 what benefits they are entitled to, and then 9, 10, the point number 9 and 10, I'll add those things in the PPT itself and will give you। और उसके बाद ये जो इसमें से जो पूरा चैप्टर्स नहीं पढ़ना है आपको, आपको बस देखना है कि मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस वाला जो सब हेडिंग्स है उसको देखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थोड़ा देख लेना, एंड सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 है उसके थोड़े प्रोविजंस पढ़ लेना। दैट इज ऑल दैट यू नीड। मैंने बता दिया है आपको ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू नीडेड टू नो। बस आप इसको रिवाइज करते टाइम वो आपके दिमाग में आएगा मैंने जो बोला है, तो दैट विल बी जस्ट अ रिवीजन फॉर यू, आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो एंड हाँ, ये सिंगल सिटीजनशिप वाला जो टर्म है उसको थोड़ा अच्छे से देखना, इसमें दिया हुआ है सिंगल सिटीजनशिप, योर थर्ड, आई थिंक थर्ड या फोर्थ सब हेडिंग, उसको देखना। ये मैं ऐड कर दूंगा इसमें, करके आपको लिख के फिर से पीपीटी दे दूंगा। Now we will solve some questions. So before that, if you have any doubts, you can ask. ये सॉल्व करने से पहले कोई डाउट है तो पूछ लो। क्या हुआ, कुछ कोई डाउट नहीं है क्या? क्या मतलब सब समझ गए? ठीक है, चलो। Now we'll move to the question. Question is, if in the opinion of the central government, the applicant has rendered distinguished service to the cause of science, philosophy, art, literature, world peace or human progress, generally it may waive all or any other condition in the Citizenship Amendment Act. This provision is provided under what? Citizenship by naturalization, citizenship by descent, citizenship by registration, none of the above. जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। राइट, अदिति, प्रगति, सोलेहा, आदर्श, रिपन, पल्लवी, महिमा, या ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन सही है यार, समझ जा रहे हो जल्दी जल्दी से। Then the next question says, a person shall be a citizen of India if he fulfills the following conditions. He must have born in the territory of India. Either of his parents was born in the territory of India. He must have been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years. He must be appropriate for verification. Which of the following are correct? A, B, D, A, B, C, D, A, B, C, all of them. नहीं यार गाइस, महिमा, आतश, पल्लवी, तुम सबने अभी आंसर दिया ऑप्शन नंबर 1, राइट? एक बार कंफर्म करो यार। हाँ यस सर, 1।
नहीं यार, नहीं, 1 कैसे होगा? देखो, the question, the question asked, a person shall be a citizen of India, ठीक है, shall be citizen of India, पता है नहीं कि किस प्रोसेस में होगा, क्या होगा, बस बोला है कि shall be a citizen of India who he fulfills the following conditions. First one, he must have born in India, must have born in the territory of India, either of his parents were born in the territory of India. ये क्या हुआ? By birth हो गया। चलो, और फिर उसके बाद आया he must have been ordinarily resident of India for not less than ordinarily resident, पहली बात। दूसरी बात है कि India for not less than 5 years, ये हो गया through registration। he must be appropriate for verification, that is for naturalization। तो सारे होंगे यार, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया कैसे हुआ ये? सर ये बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इसलिए 11 साल वाला मतलब कोई किया नहीं आइडेंटिफाई, इसलिए ये 5 लेस देन 5 वाला। देखो हमने क्या बोला? नहीं, हमने क्या बोला? बर्थ कौन सा बी वाला ऑप्शन बोल रहे हो ना तुम? हाँ सर, बोल रहे हैं कि 1 वाला सिर्फ इसलिए मतलब सी होगा। नहीं सर, सी में डाउट आ रहा था क्योंकि 7 इयर्स और 11 इयर्स, और अगर सिटीजनशिप किसी एक पेरेंट्स का इंडियन का तो उनको स्पेशल प्रोविजन दिया जाता है, तब उसमें काउंट लूं या ना लूं वो डाउट आ रहा था। अच्छा ठीक है, ये सही। मतलब देखो तुम्हें कट ऑफ डेट, उसमें मैंने बोला था कि कट ऑफ ईयर, कट ऑफ डेट रहता है, तो 7-11 आर द कट ऑफ्स। बट अब वो देखो ना, और मतलब कि बोला गया है कि ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, और उसके बाद इंडिया में 7 साल 5 साल से कम नहीं होगा, पर 5 साल से ज्यादा होगा ऑब्वियसली। 7 साल तो है ना, 7 साल तो है, उससे ज्यादा तो वो भी हो सकता है। तो यही था, गुड ट्राई। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट फॉल्स अंडर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बहुत इजी है, जल्दी कर लो। बोले क्वेश्चन देखने से पहले ही आंसर करिए। पल्लवी, राइट आदिति, राइट आदर्श, रिपॉन, राइट, सब ठीक हो? सॉरी, राइट। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। The basis of acquiring citizenship through naturalization is birth, selection, forcefully, heredity। राइट आदिति, राइट पल्लवी, आदर्श, क्या हुआ रिपन, तूने आंसर नहीं किया यार? समझ में नहीं आ गया ये? इसलिए सर आपने बोल ही दिया ना आंसर ऑलरेडी, राइट, तब देने का मतलब नहीं है। ठीक है, बाय सिलेक्शन है। तो बोला था ना सिलेक्शन, क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन है, वो किसको देगा। द गवर्नमेंट विल सिलेक्ट इवेंचुअली कि हाँ इसको दो, इसको नहीं दो, इसीलिए सिलेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू। और कुछ किसी का डाउट है या फिर कुछ है तो आप पूछ सकते हो, कहीं पे डाउट हुआ कुछ समझने में या फिर क्वेश्चंस में। समझ में आया ना ठीक ठाक से, मतलब क्या हो रहा है, क्या कैसे प्रोसेस काम कर रहा है? मतलब जब पढ़ रहे हो जाके उसको फिर से बुक पलट के आपको क्लियर एक पिक्चर मिल रहा है ना जब यहाँ से क्लास पे जा रहे हो? यस सर। ठीक है सर, ये जीएसआई के प्रीवियस ईयर्स से? हाँ, मतलब प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ ऐसे मतलब एमसीक्यूज हैं जो मतलब कॉन्सेप्चुअल थोड़े थे नेचर में। ये मतलब ये ऐसा नहीं कि बस यूपीएससी के, बाकी स्टेट पीएससी से भी उठाए थे कुछ क्वेश्चन। तो क्योंकि आपका देखो जीएस में जो क्वेश्चन का लेवल आता है ना, इसमें जीएसआई प्रीलिम्स में उतना मतलब वो यूपीएससी लेवल में तो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, आपको भी पता है। तो थोड़ा मतलब कॉन्सेप्चुअल करो, थोड़ा थियोरेटिकल थोड़ा करो, सब कर मिला के करते हो जाएगा इजीली। तो मतलब क्वेश्चन एक बार कर लोगे ना तो फिर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है दिमाग में। जैसे अभी मैंने वो बोला था कि बाई सिलेक्शन वाला जो प्रोसेस था उसको, फिर रजिस्ट्रेशन वाला जो था वो, उसको वो क्वेश्चन नहीं करते तो आधा अधूरा रह जाता। अंडरस्टैंडिंग? यस।
तो वही है कि ऐसे ही चलता रहेगा। मजे तो आ रहे हैं आप लोग को, मतलब ठीक ठाक सब लग रहा है, क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो रहे हैं अब। हाँ, और एक बार आप लोग जाके थोड़ा क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। ये यहाँ पे 5 क्वेश्चन सॉल्व करके डेली कुछ नहीं होने वाला, और थोड़े क्वेश्चंस करो, ठीक है। जाके घर पे मतलब उठाओ कोई भी एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का, यूपीएससी का उठाओ, पॉलिटी वाले क्वेश्चंस में सीधा चले जाओ, देखना समझ में आ जाएगा। देखो अभी जितना पढ़ लिया है, पॉलिटी में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको बोल दिया है जितनी चीजें, उनमें से करना स्टार्ट करो, सॉल्व करते रहो, मिल जाए जो वो वहां पे सॉल्व करो, खत्म करो, बस। ज्यादा नहीं करना, क्वेश्चन सॉल्व करने में फोकस करो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में 10 के 10 क्वेश्चन कर लो अगर ठीक से क्वेश्चन करते रहो, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, we'll stop it here, we'll end the class here. Chalo, have a great day. थैंक यू सर। Welcome.